صدر آصف علی زرداری سے چیئرمین پیمرا محمد سلیم نے ملاقات کی ہے۔ چیئرمین پیمرا نے صدر مملکت کو پیمرا رپورٹ 2023 اور 21 پیش کی ہے اور اس موقع پر صدر نے جعلی خبروں، غلط معلومات کے پھیلاؤ کی حوصلہ شکنی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کہا کہ حقائق کی جانچ پڑتال، معلومات کی تصدیق کا کلچر فروغ دینا ہوگا۔ آپ کو آگاہ کر رکھے گئے اس اہم ملاقات سے متعلق ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے چیئرمین پیمرا محمد سلیم کی ملاقات ہوئی ہے۔ چیئرمین پیمرا نے صدر مملکت کو پیمرا رپورٹ 2021 اور 23 پیش کی ہے اور اس موقع پر صدر نے جعلی خبروں، غلط معلومات کے پھیلاؤ کی حوصلہ شکنی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حقائق کی جانچ پڑتال، معلومات کی تصدیق کا کلچر فروغ دینا ہوگا۔ یہ اہم ملاقات ہوئی ہے صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیمرا محمد سلیم کی، جہاں پہ چیئرمین پیمرا نے صدر مملکت کو پیمرا رپورٹ 2021 اور 23 پیش کی ہے۔ اس سے متعلق ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے نمائندہ نیو نیوز جاوید نور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جاوید، آگاہ کیجیے گا ملاقات میں اور کیا چیزیں زیر غور رکھیں؟ جی، صدر آصف علی زرداری سے چیئرمین پیمرا محمد سلیم نے ملاقات کی اور انہیں ایک جو ہے پیمرا کی رپورٹ 2021-23 پیش کی اور صدر مملکت کا اس موقع پر کہنا تھا کہ جعلی خبریں، غلط معلومات کے پھیلاؤ کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے اور صدر نے کہا کہ حقائق کی جانچ پڑتال، معلومات کی تصحیح کا کلچر جو ہے اسے فروغ دینا ہوگا اور میڈیا معاشرے میں رواداری، اتحاد اور اخلاقی اقدار کے فروغ میں کردار ادا کرے۔ صدر مملکت نے کہا کہ میڈیا صحافت کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھے اور جدید مواصلاتی ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو چیلنجز ہیں ان کا بھی سامنا کرنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میڈیا رائے عامہ کی تشکیل میں ذمہ داری اور تعمیری کردار جو ہے ادا کرتا ہے اور اس حوالے سے مزید کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور صدر مملکت نے زور دیا کہ غلط معلومات اور پروپیگنڈے کے حوالے سے ضابطۂ اخلاق جو ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے، اور صدر مملکت نے جدید ٹیکنالوجی، باصلاحیت انسانی وسائل سے پیمرا کی استعداد کار بہتر بنانے کی ضرورت پہ بھی زور دیا، اور انہوں نے صدر مملکت نے کہا کہ میڈیا ملک کا بہترین تشخص، سماجی اور اقتصادی مسائل کے بارے میں شعور جو ہے وہ اجاگر کرے، اور چیئرمین پیمرا نے صدر مملکت کو میڈیا منظرنامے کی ریگولیشن اور ترقی میں پیمرا کے کردار اور کارکردگی کے حوالے سے آگاہ کیا، اور صدر مملکت نے پیمرا کو مزید مضبوط بنانے کی حمایت کا اعادہ بھی کیا، اور پیمرا کی مجموعی طور پہ پیمرا کی کیا کارکردگی رہی اس بارے میں تفصیلی رپورٹ جو ہے صدر مملکت کو پیش کی گئی۔ جی ٹھیک ہے جاوید، بہت شکریہ آپ کا۔ بانی پی ٹی آئی کا سانحہ 9 مئی پر مشروط معافی مانگنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں پی ٹی آئی کا ایک بھی کارکن آیا تو معافی مانگوں گا۔ سانحہ 9 مئی میں میرا کوئی کارکن ہوا تو اس کو پارٹی سے نکال دوں گا، جرم ثابت ہونے پر معافی مانگوں گا۔ اس سے متعلق ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے خالد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی خالد چودھری، آگاہ کیجیے گا کہ بانی پی ٹی آئی کا سانحہ 9 مئی پر مشروط معافی مانگنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ جی بالکل، آج 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر اڈیالہ جیل میں سماعت کے بعد جو ہے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے اس امر کا جو ہے اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں تب معافی مانگوں گا جب 9 مئی کے واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی جائیں گی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ثابت ہوا کہ میری پارٹی کا ایک بندہ بھی جلاؤ گراؤ میں ملوث ہے تو اسے پارٹی سے نکال دوں گا اور معافی مانگ لوں گا۔ ثبوت آپ کے پاس پڑے ہیں، آپ انہیں کیوں چھپا رہے ہیں؟ ثبوت چھپانا جرم ہے، پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیکھا گیا ہے۔ صحافی نے سوال کیا تو جس پر انہوں نے کہا کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں اور دیکھیں اس میں کون لوگ شامل ہیں۔ 9 مئی کے دن آپ کے لوگوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بم بھی دیکھے گئے۔ ایک صحافی نے یہ سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ پیٹرول بم ہم نے زمان پارک لاہور میں استعمال کیے تھے اور کہیں نہیں۔ بہت ساری فوٹیجز موجود ہیں کہ پی ٹی آئی راولپنڈی کے کچھ مقامی تنظیمی عہدیداران پیٹرول بم حساس عمارتوں پر پھینک رہے تھے۔ ایک صحافی کے سوال پر بانی پی ٹی آئی نے کہا اگر کوئی تنظیمی عہدیدار حساس عمارتوں پر پیٹرول بم پھینک کے میں ملوث ہے تو اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے مافیاز پیسے خرچ کر کے پاکستان مخالف مہم چلا رہے ہیں۔ اس پر بھی جو ہے انہوں نے مختلف اپنی باتیں کرتے ہوئے کہا کہ حسینہ واجد نے اپنی مرضی پسند کا آرمی چیف لگایا تھا، ایسے آرمی چیف نے ایسے لوگوں پر گولی چلانے سے انکار کیا تھا۔ ہم ملک میں انتشار نہیں چاہتے، ملک کی خاطر بات کرنے کو تیار ہیں۔ 8 فروری کو میں نے کال اس لیے نہیں دی کیونکہ عوام کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا، پھر ساری ذمہ داری ہم پر آ جانی تھی۔ ملکی معیشت پہلے سے ہی تباہ حال ہے، کوئی اگر بات نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، میں بھی نہیں کروں گا۔ 9 مئی کو ہمارے 16 لوگ شہید ہوئے تھے،
उन्होंने ये भी कहा कि आप कह रहे हैं 9 मई के आप 16 लोग शहीद हुए और कई कारकुन मफलूज हो गए, लेकिन इसकी तफसील जी अभी ठीक है, आप साथ ही रहेगा, इसके साथ ही हम तज्जिया लेंगे। सीनियर रैंकर पर्सन नजम अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताएगा कि पानी पीटीआई का सानिया 9 मई पर मशरूत माफी मांगने का ऐलान किया गया है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखें, बानी पीटीआई जो है इस वक्त जेल से तंग आ चुके हुए हैं। वो बहर सूरत कोई डील करना चाहते हैं और इसके लिए वो अपने कारकुनों की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो गए हैं। जब वो ये कहते हैं कि पीटीआई का कोई एक भी कारकुन कहीं पर किसी भी हमले में नजर आया तो वो खुद उसको सजा देंगे, उसको पार्टी से निकाल देंगे, तो क्या वो इससे पहले फिर स्टेप लें? क्या वो सनम जावेद को पार्टी से निकाल रहे हैं? क्योंकि वो तो उसमें हमले की वीडियोस डंडा लेकर पहुंचती हुई, हमला करती हुई सारी जगहों पर नजर आ रही हैं। क्या यास्मीन राशिद जो लिबर्टी से जुलूस लेकर वहां पर पहुंची, उनको पार्टी से निकाल रहे हैं? क्या महमूद रशीद, असलम इकबाल, इस तरह बहुत सारे नाम हैं और सिर्फ लाहौर की बात नहीं है। ये आप पेशावर की वो कहते हैं वीडियोस में लेकर आए और वीडियोस को दिखाएं, तो इस वक्त एक वीडियो नहीं, आप पेशावर की बात करें, मियांवाली की बात करें, रावलपिंडी की बात करें, गुजरांवाला की बात करें, लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, 1000 वीडियोस मौजूद हैं जिनमें इनके कारकुन जो हैं हमला आवर हो रहे हैं। और फिर बात सिर्फ वीडियोस की क्यों की जाए? आप गुजरांवाला में जो फैसला आया इस दहशतगर्दी की अदालत से, आप वहां पर देखें, क्या इनके रुकन पंजाब असम्बली उसमें सजा याफ्ता नहीं हुए? इनके तंजीमी ओहदेदारान इन जिन शहरों के मैंने नाम लिए तमाम जगहों पर नहीं? देखें, सिंपल सी बात है। इसके बाद इन्होंने जितनी टिकटें जारी की इंतखाबात के अंदर, क्या वो तमाम के तमाम लोग इन मुकदमात में मुलव्वस नहीं है? यानी कि जो भी हुआ उस वक्त जो जियो फेंसिंग हुई और ये सारा कुछ सीसीटीवी वीडियोस की बात करते हैं, फुटेजेस की बात करते हैं, वो तो आधे से ज्यादा और बहुत सारी तो सोशल मीडिया पे वैसे ही वायरल है। तो लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जो है वो शिद्दत के साथ चाहते हैं कि फौज के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। वो पॉलिटिकल किसी डायलॉग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये एक तरह से रद्द-ए-अमल आप जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ हैं, जो कि तर्जमान पाक फौज के, उनकी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हम 9 मई के हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ पहले दिन था वही मौक़िफ़ आज है, हम उसको बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उसके जवाब में उनकी ये पेशकश है कि वो अपने कारकुनों को खुद कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कोई जुर्रतमंदाना या एक बहादराना काम नहीं है। उनको तस्लीम करना चाहिए कि एक रोज पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने, जब वो खुद ये तस्लीम कर चुके हुए हैं कि उन्होंने खुद कॉल दी थी कि जीएचक्यू के सामने और फौज के सामने जाकर आपने एहतजाज करना है, तो जब लीडर ने ये कॉल दे दी और लोग वहां पर पहुंच गए और उसके बाद हमलावर हो गए, तो आज इसको सिर्फ कारकुनों पर डाल देना और ये कह देना कि मैं तो उस वक्त हिरासत में था, ये हरगिज मुनासिब नहीं है। ये पहले प्लानिंग हो चुकी हुई थी, मंसूबाबंदी हो चुकी हुई थी, उस मंसूबाबंदी के तहत वो जिम्मेदारी कबूल कर चुके हैं इससे पहले होने वाली गुफ्तगू में। तो मैं इमरान खान साहब से कहूंगा कि अगर उनके कारकुन ये समझते हैं कि वो एक बहादुर आदमी हैं और एक बहादुरी के साथ मुकाबला करते हैं, सच बोलते हैं, तो पूरा सच बोलें और पूरी बहादुरी का मुजाहरा करें। अपने कारकुनों को कुर्बानी का बकरा ना बनाएं, उनकी कुर्बानी ना दें, बल्कि खुद जिम्मेदारी कबूल करें और उसके बाद गुफ्तगू जो है वो सियासी कुव्वतों के साथ करें। सियासी कुव्वतें ही आगे रास्ता निकालेंगी। फौज उनके साथ बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, नहीं करना चाहती, और या अगर वो इस पर डटे रहेंगे तो डेडलॉक रहेगा। जी अच्छा, नजम साहब ये बताएगा कि स्टेटमेंट के दो रुख हैं, आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बानी पीटीआई खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? और ये भी बताएगा कि उनकी जानिब से ये कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज में अगर पीटीआई का एक भी कारकुन आया तो माफी मांगूंगा। वो किन एविडेंस की बात कर रहे हैं जब तमाम तक ऑडियोस मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं? जी, यही इससे पहले मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि ये तमाम ऑडियोज वीडियोस मौजूद हैं। उनका फोरेंसिक भी हो चुका हुआ है, उनमें से बहुत सारी जो है अदालतों में साबित भी की जा चुकी हैं, बिल्कुल दुरुस्त है, और उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं कि लोगों ने खुद अपलोड की और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, उनके तंजीमी ओहदेदार थे, उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, सोशल मीडिया ट्रोल्स थे, वो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। देखिए, ये बड़ी एक लॉजिकल सी बात है, जब आप कॉल देते हैं कि वहां पर आपने जीएचक्यू के सामने या फौजी तंसीबात पर जाकर एहतजाज करना है, तो उसके बाद उस एहतजाज को पुरअमन रखना किसकी जिम्मेदारी थी? यास्मीन राशिद साहिबा की ये ऑडियो भी रिकॉर्ड पर आ चुकी हुई है
کہ انہوں نے اسلام آباد میں اسد عمر صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے موقع دیا جائے کہ یہ کارکن جو کچھ کر رہے ہیں ان کو روکا جائے، لیکن وہ اس وقت تک یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، نہیں روک سکتی کارکنوں کو جب تک کہ مجھے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے اجازت نامہ نہ مل جائے. یعنی کہ جو کچھ تھا وہ پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا، اور اگر وہ رکوانا بھی چاہتی تھی تو اس کے لیے عمران خان صاحب کی اجازت درکار تھی، جو اجازت ان کو نہیں دی گئی. تو یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے. اب بہت ہی خود ہمارے ٹی وی چینل سے وابستہ ایک جو دوست ہیں ان کے ساتھ صنم جاوید جب وہ ڈنڈا اٹھا کر جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم میں دیکھتی ہوں، میں نبٹتی ہوں تم سے کہ تم نے ہمارے خان کو اٹھایا کیسے، یہ سب کیا تھا؟ یہ سب اس کے بعد کسی اور ثبوت کی، کسی اور ویڈیو کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اور اس کے بعد جب ہم کور کمانڈر ہاؤس لاہور کو دیکھتے ہیں، جناح ہاؤس جسے کہا جا رہا ہے، جناح ہاؤس کو دیکھتے ہیں، وہاں سے جو لوگ نکل رہے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے تنظیمی عہدیدار ہیں، ان کے وزراء وہاں پر، سابق وزراء وہاں پر موجود تھے، ان کے عہدیدار یہاں پر موجود تھے. گجرانوالہ میں آپ جا کر دیکھ لیں، آپ پوری اس لسٹ کو چیک کر لیں جو گجرانوالہ کی عدالت سے سزا دی گئی. تو اس وقت خان صاحب ایک لفظ بہت جو پاکستان تحریک انصاف استعمال کرتی ہے غلطی کا، یہ غلطی نہیں تھی کہ غلطی ہے تو ہم اس کی معافی مانگ لیں گے، یہ ایک جرم تھا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی ایچ کیو کے سامنے جا کر احتجاج کرنا کون سا آئین میں منع ہے، تو واضح کر دیا جائے ان کے اوپر کہ جتنے کینٹ ایریاز ہوتے ہیں، فوجی علاقے ہوتے ہیں، فوجی تنصیبات والے علاقے ہوتے ہیں، وہ ریسٹرکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں، وہاں پر آپ انٹر نہیں ہو سکتے. اس وقت بھی کینٹ میں آپ کو پہلے ناکہ ملتا ہے، ان کی پرمیشن سے آپ آگے جاتے ہیں. اور پھر دوسری بات، یہ صرف احتجاج نہیں تھا، یہ احتجاج ہوتا تو شاید اس کو برداشت کر لیا جاتا، یہ باقاعدہ حملہ تھا. سی ایس ڈی شاپس کو لوٹا گیا، وہاں پر میں نے وہاں پر 100-150 گاڑیاں جلی ہوئی دیکھی. اس طرح اچھا نجم صاحب یہ بھی بتائے گا کہ آپ کا پولیٹیکل انالیسس کیا کہتا ہے کہ کیا یہ معافی مانگی جائے گی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یا پھر ایک اور یو ٹرن دیکھنے کو ملے گا ہمیں؟ جی نجم صاحب سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی. اچھا نجم صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کا پولیٹیکل انالیسس کیا کہتا ہے کہ کیا یہ معافی مانگی جائے گی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یا پھر عوام ایک اور یو ٹرن دیکھیں گے؟ دیکھیے یہ مشروط معافی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھائیں، پھر اس کے بعد یہ کریں. فوج اس حوالے سے بالکل واضح ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر اس پر پریس کانفرنس کر چکے ہوئے ہیں، وہ تمام فوٹیجز دکھا چکے ہوئے ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں. ان کا یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ بہت ساری سی سی ٹی وی فوٹیجز ایسی ہیں جو کہ غائب کر دی گئی ہیں اور ان کو ٹریپ کر کے وہاں پر لے جایا گیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہاں پر گئے ہی کیوں؟ وہاں پر جانا ہی ایک غلط فیصلہ تھا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک کسی بھی ایسے احتجاج کا منطقی نتیجہ ہو سکتا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ رینجرز نے گرفتار کیوں کیا، اگر عمران خان کو رینجر سے، تو کیا اس سے پہلے رینجرز نے کسی وزیر اعظم کو گرفتار نہیں کیا تھا؟ لاہور کے ایئرپورٹ پر میاں نواز شریف اور مریم نواز کو رینجرز نے ہی گرفتار کیا تھا. تو اس وقت شہباز شریف ایک جلوس لے کر جا رہے تھے ایئرپورٹ کی طرف، تو کیا وہ بھی حملہ کر دیتے؟ نہیں، انہوں نے پولیٹیکل وزڈم دکھائی، انہوں نے اپنی پارٹی کو بچایا، انہوں نے اپنی ریاست کو بچایا، انہوں نے بھارت کو خوش ہونے کا موقع نہیں دیا. تو اس وقت جو معافی مانگی جا رہی ہے یہ ایک ٹرکی کھیل ہے، اور لوگوں کو ایک طرح سے ایک آپ یہ کہیں کہ فکری مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے کارکن نہیں تھے. وہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن معاملہ اس طرح نہیں سلجھے گا. عمران خان صاحب کو واضح اور دو ٹوک انداز میں اپنا جرم تسلیم بھی کرنا پڑے گا. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جیسے ہی وہ اس کو تسلیم کریں گے جرم کو، اس کے ساتھ ہی آپ جی ٹھیک ہے، بانی پی ٹی آئی کا سانحہ اور ممبئی پر مشروط معافی مانگنے کا اعلان کیا گیا ہے. اس سے متعلق ہمیں تجزیہ دے رہے تھے سینئر اینکر پرسن نجم علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. اس سے پہلے ہمیں تفصیلاً اس خبر سے متعلق اپڈیٹ کر رہے تھے خالد چودھری، آپ کا بھی بے حد شکریہ. سپریم کورٹ کے شریعت ایپلیٹ بینچ نے 27 سال بعد قتل کے مقدمے کا فیصلہ جاری کر دیا ہے. قتل کے مجرم کے راضی نامے کی بنیاد پر رہائی کا حکم جاری کیا گیا ہے. چیف جسٹس پاکستان نے انصاف کی فراہمی میں تاخیر پر معذرت بھی کی. ریمارکس میں کہا کہ آپ کو اتنے سال جیل میں گزارنا پڑے جس پر معذرت چاہتا ہوں. عدالتی سماعت سے متعلق آپ کو آگاہ کرے گئے اہم خبر ہے. سپریم کورٹ کے شریعت ایپلیٹ بینچ نے 27 سال بعد قتل کے مقدمے کا فیصلہ جاری کر دیا ہے اور قتل کے مجرم کے راضی نامے کی بنیاد پر رہائی کا حکم جاری کیا گیا ہے. چیف جسٹس پاکستان نے انصاف کی فراہمی میں تاخیر پر معذرت بھی کی ہے. ریمارکس میں کہا ہے کہ آپ کو اتنے سال جیل میں گزارنا پڑے جس پر معذرت خواہ ہوں. قتل کے مجرم کے راضی نامے کی بنیاد پر رہائی کا حکم جاری کیا گیا ہے.
सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट बेंच ने 27 साल बाद कत्ल के मुकदमे का फैसला जारी कर दिया है। कराची में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कार्रवाई और नॉर्दर्न बाईपास पर कार से भारी मकदार में मनशियात बरामद कर ली गई है। आलमी मार्केट में कीमतों को करोड़ों रुपए उनकी बताई जा रही है। और आपको आगाह करके कहें इस अहम खबर से मुताल्लिक कराची में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कार्रवाई की गई है। नॉर्दर्न बाईपास पर कार से भारी मकदार में मनशियात बरामद कर ली गई है। इससे मुताल्लिक हमें मजीद अपडेट करेंगे सरफराज कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सरफराज, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, खुफिया इतलात पर एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जो है सुपर हाईवे से मुतसिर एक अस्पताल के बाहर सुजुकी गाड़ी पे जो है कार्रवाई की है, जहां से भारी मिकदार में मंशियात बरामद की है। हुकाम का ये कहना है कि खुफिया इतलात पर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें बरामदशुदा मंशियात के अंदर 3 किलोग्राम जो है हेरोइन, जबकि 12 किलोग्राम चर्स इंटरनेशनल क्वालिटी की, जिसकी आलमी मार्केट में कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। बताया ये भी गया है कि कार्रवाई की जो है असिस्टेंट डायरेक्टर सैयद मोहम्मद उमर की निगरानी में मारी गई है और इस गाड़ी जो है वो कब्जे में लेकर मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन 1200 किलो मुर्दा मुर्गियां तल्फ कर दी गई हैं। 500 पैकेट गुटखा जब्त किया गया है। 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और 2 मुलजिम भी गिरफ्तार किए गए हैं। मुर्गियों की तरसील खड़ियावाला जबकि ममनुआ गुटखा हजवेरी टाउन के करियाना स्टोर से जब्त कर लिया गया है। मजीद हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे वकास शहराज हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, की क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये पंजाब फूड की बड़ी कार्रवाई सामने है, जिसमें 1200 किलो मुर्दा मुर्गियां जो है वो पकड़ी गई हैं और उनको तरफी कर दी गया और 500 पैकेट जो है गुटखा जब्त किया गया, जिनके खिलाफ जो है मुलजमान के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज करके 2 ही मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से कहा गया कि खुलियावाला और मानावाला से फैसलाबाद में मुर्दा की गोश्त की तफसील जो की जा रही थी, जिसे नाकाम बनाया गया है, जिसमें मुलजम को जो है गिरफ्तार भी किया गया और ये मुर्दा गोश्त जो है शहरियों और फूड पॉइंट पर जो है वहाँ पर पहुंचाया जाता था, जहाँ पर ये बर्गर शवारमे वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और उसके अलावा हजवेरी टाउन में जो है किराना स्टोर पर ममनुआ गुटखा जब्त करके जो है स्टोर मालिक को गिरफ्तार किया गया और गाड़ी से जो है बरामद होने वाली मुर्दा मुर्गियां जो है वो भी तलब कर दी गई हैं। डीजी फूड का ये कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयां जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। सखर में बारिश के बाद दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है। सखर और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। महकमा आबपाशी ने तमाम अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ सबगतुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी सबगत, आगाह कीजिएगा। मुल्क के बलाई इलाकों में बारिशों के बाद जो है वो दरिया सिंध पर भी जो है वो पानी की सतह जो है वो तेजी से बुलंद होना शुरू हो गई है। दरिया सिंध पर वाक़या गुड्डू बैराज और सखर बैराज पर जो है वो निचले दर्जे का सैलाबी सूरत हाल इस वक्त जो है वो नाफिज कर दी गई है। सखर बैराज इंतजामिया का कहना है कि सखर बैराज से जो है वो इस वक्त 2,45,220 क्यूसिक का जो है वो एक निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सखर बैराज की अप स्ट्रीम पर जो है पानी की आमद जो है वो 2,45,000 क्यूसिक है, जबकि डाउन स्ट्रीम जो है वो 2,26,000 क्यूसिक बताई जा रही है। पानी की सतह बुलंद होने के बाद जो है सखर के दरिया सिंध के जो कच्चे के इलाके हैं वो अब से कुछ दिन के बाद जो है वो ज़ेरियाब आ जाएंगे। वहां पर जो है रिहाइश पजीर जो अफराद हैं उनकी नकल मकानी के लिए जो है वो जिले इंतजामिया, सखर बैराज इंतजामिया समेत डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो उसने हिकमत अमली तैयार कर रही है, ताकि वहां पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जो है कश्तियों के जरिए जो है उनकी नकल मकानी को जो है वो। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रखिएगा। ठट्ठा के नवाही इलाके गोट यूसुफ पीर बाजारी में नहाते हुए 2 बच्चे तालाब में डूब गए हैं। लाशें और तालाब से निकाली गई हैं, जबकि जाबाग बच्चों में 7 साल साहिल और 8 साल का वसीम शामिल है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ ताज़ा गुल से। जी ताज़ा गुल, आगाह कीजिएगा, इससे मुताल्लिक़ क्या डिटेल्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये ठट्टा का साहिली इलाका है। गांव यूसुफ फिरोजानी में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ 2 बच्चे तालाब में नहाते हुए डूब कर जाँ बाग हो गए। इसमें 1 साल साहिल और 8 साल वसीम फिरोजानी शामिल है। ताम इलाका मकी में इनकी लाश जो है
तालाब से निकाल के अस्पताल मुंतकिल कर दी गई और जरूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के वाली तामन की लाशें घर पहुंचने पर वर्षे में शदीद कहराम मच गया है और गांव को उसके शोक में डूब गया है। जी ठीक है तासुल, बहुत शुक्रिया आपका। हैदराबाद समेत गिरदनवाह में बारिश की एंट्री, मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों ने तफरीह के लिए दरियाए सिंध का रुख कर लिया है, ताहम वहां जाने वाले सहूलतें ना होने का शिकवा करते नजर आते हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ नासिर शेख से। जी नासिर। समेत मुल्क भर में होने वाली बारिशों के बाद जो है वो पानी दरियाए सिंध में पहुंचा है और दरियाए सिंध में जो है वो बहुत वाफिर मिकदार में पानी आ गया है, जिसके बाद शहरी यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। दूर दूर से सिंध के मुख्तलिफ अजला से जो है वो शहरी इंजॉय करने आए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद यहाँ वकील साहब हैं। जी बताइएगा आप कहाँ से आए और किस तरह इंजॉय कर रहे हैं? सर हम डिस्ट्रिक्ट खैरपुर से आए हुए हैं, यहाँ से हम गुजर रहे थे वापस डिस्ट्रिक्ट खैरपुर, तो सोचा कि अच्छा सा मंजर है, थोड़ा सा इंजॉय भी कर लें, मज़ा भी देख लें। लेकिन एक कमी है, बहुत सी कमी है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कोई ऐसा कोई पिकनिक, कोई पार्क, ऐसी कोई सहूलत, यहाँ कोई बंदा आए और एंजॉय करे अपनी फैमिली के साथ, ऐसी कोई है ही नहीं। बहुत ही अफसोस हो रहा है। गवर्नमेंट को ऐसे मकामात पर ऐसे काम करने चाहिए। जी इनका कहना है कि यहाँ तफरीही सहूलियात तो हैं, लेकिन यहाँ कोई वो बैठने की जगह नहीं है या इस तरह की कोई वो जगह ही नहीं है जिन पे यहाँ पे बैठ के एंजॉय किया जा सके। अलबत्ता शहरियों के पास जो कुछ वाफिर जो चीज़ मौजूद है उसको भी वो एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर सैर व तफरीह में मसरूफ़ हैं। जी मुल्क भर की तरह पत्तोकी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पे पहुंच चुकी हैं। शहरियों ने जश्न आज़ादी के जोशो खरोश के साथ मनाने के लिए सजावटी स्टॉल्स का रुख कर लिया है और शहरी जश्न आज़ादी के हवाले से सामान खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नियाज अहमद से। जी नियाज, अपडेट कीजिएगा। दीगर शहरों की तरह पत्तोकी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां हैं वो अरूज पर पहुंच चुकी हैं। जश्न आज़ादी के हवाले से सजावटी सामान के शहर भर में स्टॉल सज चुके हैं, जहां पे सबज हलाली परचमों की बहार आ गई है। शहरियों की बड़ी तादाद ने इन स्टॉलों का रुख कर लिया है, जहां पे वो बैजर्स, झंडियाँ, झंडे और दीगर सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ़ है। ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँची है, जो बच्चों के लिए सबज चूड़ियाँ, टी शर्ट, एयर बैन और दीगर जो है वो सामान की खरीदारी कर रही है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इससे जानते हैं कि क्या तैयारियां चल रही हैं। जी हमने बच्चों के लिए काफ़ी शर्टें वगैरह ख़रीदी हैं, बैचेस वगैरह ख़रीदी हैं, झंडियाँ भी ख़रीदी हैं और घर के छत पे लगने वाला बड़ा झंडा ख़रीदा है। जी आपने शहरी की बात सुनी, इनका कहना है कि बच्चों के लिए टी शर्ट, बैजर, झंडियाँ और दीगर सामान ख़रीदा है और इस साल भी इंतहाई जोशो जज्बे के साथ 14 अगस्त को मना रहे हैं। जी 14 अगस्त करीब आते ही जगह जगह झंडियों, बैजेस, झंडों और कौमी रंगों से बने हुए लबासों के स्टॉल सज गए हैं। बच्चे और बड़े ज़ोक और शौक से जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। बैजेस लगाए जा रहे हैं, घरों पर लहराने के लिए परचम खरीदे जा रहे हैं। गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल आवाम में जश्न आज़ादी मनाने का जोशो खरोश इंतहाई अरूज पर है। स्टॉल पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी सलीम बागड़ी, उनसे पूछते हैं कि जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से आवाम क्या कहते हैं। जी सलीम। जैसे यौम आज़ादी करीब आता जा रहा है, बाजारों में भी यौम आज़ादी पर फरोख्त होने वाली चीज़ों के स्टॉल सज चुके हैं। बैनर, झंडिये, बैंड्स और कौमी लिबासों के स्टॉल जगह जगह सजे हुए हैं। लोग खरीदारी करने में मसरूफ हैं। गुज़श्ता सालों की बनिस्बत इस साल लोगों में जोशो जज्बा इंतहाई अरूज पर है। हमारे साथ यहाँ एक खरीदार है, उनसे पूछ लेते हैं कि वो क्या खरीदने आए हैं। जी हम 14 अगस्त के लिए बच्चों के लिए 14 अगस्त के झंडे और बैनर वगैरह खरीदने के लिए आए हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान की खुशी बहुत जोश और खरोश से मनाएंगे। 14 अगस्त के झंडे और बैनर बच्चों के लिए खरीदेंगे। जी जैसा कि इनका कहना है कि गुज़श्ता सालों की बनिस्बत इस साल हम यौम आज़ादी इंतहाई जोश और जज्बे से मनाएंगे। जी कोयटा के सिविल हॉस्पिटल में जश्न आज़ादी के हवाले से मुनफ़रिद प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा ने अस्पताल में बीमार बच्चों के साथ आज़ादी का जश्न मनाया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ मोहम्मद हनीफ बाज़ाई से, जो कि इस वक्त प्रोग्राम में ही मौजूद हैं। जी हनीफ बाज़ाई, आगाह कीजिएगा।
मुल्क भर की तरह कोयटा में भी अगस्त का महीना शुरू होते ही मुख्तलिफ तकारीब जो है वो मुनक़िद किए जाते हैं। इस वक्त में मौजूद कोयटा के सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ पर 14 अगस्त के हवाले से एक तकरीब जो है वो मुनक़िद की गई है। क्या इस वक्त डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। हम 14 अगस्त की जो तकरीबात हैं जो अमूमन सेलिब्रेट की जाती हैं किसी तकरीब से, आउटडोर तकरीब से, हमारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की हेड है मैडम शगुफ्ता नमरीन, उन्होंने ये आइडिया प्रेजेंट किया कि क्यों ना हम इस दफ़ा अपने मुस्तकबिल के मेहमानों के साथ अपना 14 अगस्त मंगाएं। जी बिल्कुल, जैसे अपने सुनाए का कहना है कि प्रोग्राम मुनक़िद करने का मकसद ये कि हमें हमारे बच्चों को आज़ादी के हवाले से आगाही जो है वो मिल सके। जी, मुल्क भर की तरह पंजाब की सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां। बाजारों में जगह जगह सब्ज़ लाली परचमों के स्टॉल सज गए हैं। बच्चे बड़े सभी पुरजोश हैं। शहरियों का कहना है कि 14 अगस्त को बच्चों के लिए चीज़ें लेते हैं और वतन से मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी 14 अगस्त के हवाले से तैयारियां जारी हैं। शहरी जो है वो स्टॉल से शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, बैजेस लिए जा रहे हैं, झंडे लिए जा रहे हैं। बच्चियों के लिए जो है वो पोनियां लेते हुए और हेयरबैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे, आज बच्चों के लिए क्या क्या उन्होंने शॉपिंग है। बस यही है कि बच्चों के लिए ये झंडे वगैरह, वो ऐनकें, वो घड़ियाँ, वो टॉप्स वगैरह, वो कैचर वगैरह सारा कुछ मांगते हैं, वो लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह वो बच्चों के लिए ये 14 अगस्त है। इंशाल्लाह 14 अगस्त का महीना है, ये सबके लिए 14 अगस्त है। ये बच्चों के लिए सारी हर चीज़ लेके जाते हैं हम। जी बिल्कुल, जैसे कि शहरी हमारे साथ मौजूद थे और उनकी बात सुनी, उनका कहना था कि बच्चों की डिमांड होती